Good morning students, how are you? I am fine. Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture we are going to start a very new chapter and very interesting chapter also, and that is the probability chapter for class 12. Okay, so I think for class 12 application of differentiation chapter, I think it was completed, and I wanted to start a very new chapter which is not related actually with this calculus part, because we were solving this calculus part since this 3 or 4 months and 4 months back. So just we will start this very new chapter which is not related with this calculus part, and a very new concept. Actually the concept is not new. Probability concept, I think it was introduced in the junior classes also. Okay, and I think most of you have the preliminary ideas regarding this probability chapter. Okay, what is probability and when this probability concept will be used, I think that are all known. Okay, but now actually this advanced pattern of probability questions and probability solutions will be done in various lectures regarding, that means on this topic, on this chapter, probability chapter. And in CBSE, I think the syllabus was compressed, and that's why this probability from probability chapter 6 marks will come, and in the state board 10 marks from the probability chapter will come. Okay, till now that so far I got the news from this different state boards, but because of this pandemic, the syllabus may be actually deducted. Okay, some concepts and some exercises and some topics may be deducted, but till now there is no news regarding this matter. Just most importantly, if you want to face this JEE exam, then you will have to solve each and every concepts. Okay, this JEE and this NEET exams will not consider any kind of pandemic situations. These exams may be delayed. Okay, but the syllabus will remain same. Syllabus will not be compressed here. Okay, so just remember this thing. So for facing this type of exams, you need to solve each and every question, and you need to face each and every situations on the particular topic, on the particular chapter as well. Okay, so probability शुरू करते हैं. What is probability? Probability means chance. Probability मतलब क्या है? Chance. जैसे कोई भी एक काम करेंगे, काम कर रहे हैं, उसका आउटपुट जो है नहीं पता है हम लोग. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? आउटपुट को गैस करेंगे. गेसिंग. अब जहां पर गेसिंग आ जाता है वहां पर चांस आ जाता है. अब जब चांस आ जाता है, देन प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड. ओके, जैसे पॉइंट टॉस कर रहे हैं, आउटपुट मुझे पता नहीं है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. गेसिंग, हेड आएगा, गेसिंग. ठीक है, चांस यहां पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. वी डोंट नो. आई थिंक till actually this outcome appears, we don't know about the outcome as well. Okay, so if you don't know the outcome, then you will have to guess something. Okay, so if the guessing are coming, that means what? Guessing, chance, this type of words are being introduced, so this probability concept will be there. Okay, that means concisely you can say probability मतलब है एक एक्सपेरिमेंट होगा. एक्सपेरिमेंट के, अब एक्सपेरिमेंट करोगे, आउटकम तो कुछ मिलेगा, है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो आउटपुट तो मिलेगा. आउटपुट के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द आउटपुट. जस्ट वी विल हैव टू गेस समथिंग. दैट मींस दिस रिजल्ट may come, this result may come, this result may come. Just we can guess something.
Other than that, we are helpless. Okay? So, जब भी ये चांस आपके साथ, आपके पास या फिर आपके क्वेश्चन में आ जाए, तब आपको प्रोबेबिलिटी यूज करना है. ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ये शायद पहले से पता होगा, है कि नहीं? जैसे प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट क्या है? व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या है? यहां पर कुछ जैसे कुछ यहां पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. एक्सपेरिमेंट मतलब है कुछ एक्टिविटी करेंगे. अब एक्टिविटी का रिजल्ट क्या आएगा वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है? सो ये ऑब्जर्व जो कर रहे हैं वही तो एक्सपेरिमेंट है कि नहीं? तो अब ऑब्जर्व जो कर रहे हैं वही तो एक्सपेरिमेंट है कि नहीं? तो ऑब्जर्व करने के बाद आउटपुट मिलेगा. ओके? तो एक्सपेरिमेंट के बाद आउटपुट मिलता है कि नहीं? तो दैट मीन्स यहां पर जैसे कॉइन टॉस कर रहे हैं. ठीक है? अब कॉइन टॉस करने के बाद आंसर क्या आएगा? दैट मीन्स आउटपुट क्या आएगा? वो ऑब्जर्व कर रहे हैं. दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहां पर. ठीक है? अच्छा, आउटपुट क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है. दैट मीन्स जो आउटपुट्स यहां पर चांसेस है, मतलब आने का चांसेस है, वो सब आउटपुट्स को मिला के एक सेट बनता है. वो सेट को बोला जाता है सैंपल स्पेस. आप लोग जानते हैं शायद सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस मतलब है, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, देन कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटपुट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. ओके? एक्सपेरिमेंट मीन्स, experiment is an observations. Experiment means what? Is an observation by which you can get some output, get some result. Okay? So sample space गया. Now third concept है event. Event. What is event? Event क्या है? Event मतलब है ये जो head और tail एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो दैट मीन्स वो आंसर आएगा ना, वो सबको इवेंट बोला जाता है. अब सब मिला के तो सैंपल स्पेस है. अब सैंपल स्पेस के अंदर जो जो आउटपुट्स है ना, ऑल द आउटपुट्स कैन बी एज्यूम्ड एज वन इवेंट. दैट मीन्स हेड एक इवेंट, टेल एक इवेंट. मतलब हेड आएगा एक इवेंट, टेल आएगा एक इवेंट. तो कितना इवेंट है यहां पर? 2 इवेंट. ठीक है? अच्छा, तो दैट मीन्स ये सब चाहिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए. ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले? प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद है, अच्छा इवेंट तो मिल गया, उसके बाद है फेवरेबल इवेंट. फेवरेबल इवेंट. अब फेवरेबल इवेंट क्या है? दैट मीन्स मुझे हेड चाहिए. अब जीतने के लिए हेड चाहिए. हेड आने के बाद ही तो आप बैटिंग या बॉलिंग चूज करेंगे, हैं? सो यू वांट दिस हेड विल बी अपियर्ड. ओके? सो अगर आपको हेड मतलब ये पहले से ही डिसाइडेड है ये कि हेड आना चाहिए जीतने के लिए. ठीक है? सो दैट मीन्स हेड इज द फेवरेबल इवेंट. हेड यहां पर क्या होगा? फेवरेबल इवेंट. ठीक है? 2 इवेंट है तुम्हारे पास. दैट मीन्स 2 आउटकम्स विल बी देयर, हेड और टेल. फेवरेबल कौन सा है? हेड आना चाहिए. दैट मीन्स हेड आना ये फेवरेबल इवेंट है. दैट मीन्स फेवरेबल इवेंट मतलब है जो मुझे चाहिए, दैट विल बी द फेवरेबल इवेंट. जो मुझे चाहिए, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन whatever will be given, actually for finding the probability of that some particular event, that will be your favorable event. That means जो भी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इसका प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ मुझे, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ, दैट मीन्स व्हाट? दिस इवेंट विल बी फेवरेबल इवेंट. ठीक है? कुछ इवेंट तो दिया जाएगा है, उसके ऊपर फेवरेबल. दैट मीन्स जो इवेंट तुम्हें चाहिए मतलब क्या? क्वेश्चन में जो बोला जाएगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, देन दिस इवेंट विल बी द
द फेवरेबल इवेंट। क्लियर? अब जो है ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसके बाद आउटपुट्स मिला है, ठीक है। अब आउटपुट्स के बीच दैट मींस इवेंट्स, अब जो भी इवेंट्स आएगा एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। एक्सपेरिमेंट ऐसा कोई तो बाइंडिंग्स नहीं है कि इसी टाइप का ही एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, ओके। सो इफ the experiment will be given and some events will be there, okay. So if is there any common, that means if there is any common part between two events, अगर common part हो दोनों इवेंट में common part हो, then these two events are called mutually inclusive events। अगर दो इवेंट्स के बीच कुछ कॉमन हो तो दिस टू इवेंट्स इज कॉल्ड म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। अब दो इवेंट्स के बीच अगर यहां पर कुछ भी कॉमन ना हो, दैट मींस टू डिफरेंट इवेंट्स आर देयर, देन दिस टू इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ओके। वी विल डिस्कस इट, म्यूचुअली इंक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, हम लोग करेंगे डिस्कस। बट द प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट इज दैट मींस प्रोबेबिलिटी, मुझे क्या मिला, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ total events, right? फेवरेबल इवेंट्स जो है उसको हम लोग E नाम दे देते हैं। टोटल इवेंट जो है, टोटल इवेंट जो है उसको S नाम देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, probability equals to number of favorable event by number of total event, n, that means number, n of E by n of S। और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर सैंपल स्पेस, इवेंट्स, फिर उसके बाद फेवरेबल इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, these concepts are written in the book and I think you have the preliminary ideas regarding these concepts. So I think it was not supposed to be written in the notebook, okay. I think you already know these concepts, okay. Now एक छोटा सा एग्जांपल जो है वो करते हैं प्रोबेबिलिटी थोड़ा रिकॉल करने के लिए, ओके। रिकॉल करने के लिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। ए पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड वंस। ए पेयर ऑफ डाइस, दैट मींस एक पेयर है डाइस का। डाइस मतलब जानते हैं ना, लूडो का जो होता है ना वो 6 साइड का क्यूबिकल शेप। तो ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस। एक क्वेश्चन लिखो प्रोबेबिलिटी को रिकॉल करने के लिए, ठीक है। ये दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर क्लास 12, ओके। इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो हो ही जाएगा सब कुछ। तो ए पेयर ऑफ डाइस is thrown once. Pair of dice is thrown once. Find the probability of getting. Find the probability of getting. Look, question number 1, a doublet. Question number 2, an even number on both dice. Even number
on both dice. Third question है, each and every questions need to be treated like event. Okay, favorable. Sum of the numbers on two dice is 7. Sum of the numbers on two dice is 7. So that is the question, and I think this question is basic level question, and just I want to recall the concepts of probability. Okay, just I want you to make it clear. Okay, now a pair of dice, दो डाइस एक साथ थ्रो किया गया, पेयर ऑफ डाइस एक साथ थ्रो किया गया. अब डाइस में, एक डाइस में कितना आउटकम होता है? 6, 6, 1 2 3 4 5 6. दूसरे डाइस में भी 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अब जो है दो डाइस अगर एक साथ अगर मैं थ्रो करूं तो आउटकम क्या क्या आ सकता है, इसका एक सेट बना लेते हैं. ठीक है, जो सैंपल स्पेस होता है ना वो. सो लिखो ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन. ठीक है, तो सैंपल स्पेस एस मतलब क्या क्या आउटकम आ सकता है वो हम लोग लिखते हैं. तो पहले डाइस में, फर्स्ट डाइस में 1 आ सकता है, सेकंड डाइस में भी 1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है, 1,4 आ सकता है, 1,5 एंड 1,6 आ सकता है. दैट मींस दोनों डाइस में 1 1 आ सकता है. एक डाइस में 1, दूसरे डाइस में 2, एक डाइस में 1, दूसरे डाइस में 3, एक डाइस में 1, दूसरे डाइस में 1 4, एक डाइस में 1, दूसरे डाइस में 5. ऐसे तो पॉसिबिलिटीज है. ठीक है ना. आउटकम जो आएगा वो तो आपको लिखना है, उसके बाद आएगा फेवरेबल. सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स लिखना है. फिर 2,2 भी आ सकता है, 2,3 भी आ सकता है, 2,1 का है, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 and 2,6. Now again 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 and 3,6. तो ऐसे करते करते, अच्छा ऐसे करते करते यहां पर डॉट नहीं देना है. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 and 4,6. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 and 5,6. और एक बाकी है 6 वाला. ठीक है ना. तो कहां लिखूं ये, कहां लिखूं? ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6. तो ये ब्रैकेट क्लोज. दैट मीन्स सैंपल स्पेस, दैट मीन्स all the outcomes supposed to be comprised in one set, and that is the sample space. Okay, so here you can see all the outcomes were comprised in one set. Okay, now it's time to move to the favorable event. These are all total events. Okay, this sample space, the number of that means the cardinal number of this set is called the total number of events. ये हर एक इवेंट है, एक इवेंट, दो इवेंट, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते कितने इवेंट्स है टोटल? यहाँ पर 36 इवेंट्स हैं. 36 काउंट करो, देखो 36 मिलेगा. ठीक है. तो दैट मीन्स यहां पर लिखो सो n of s इक्वल्स टू 36. ठीक है नहीं? अच्छा ये तो क्वेश्चन है. n of s इक्वल्स टू क्या आएगा? 36. ये यहां पर n. ठीक है, ये तो क्वेश्चन है. Here n of s equals to 36. Now question number 1 में आओ.
क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फेवरेबल इवेंट, ए डॉबलेट, डॉबलेट आना चाहिए। डॉबलेट मीन्स क्या, व्हाट इज डॉबलेट हियर? डॉबलेट मीन्स पेयर ऑफ टू सेम नंबर्स, दैट मीन्स 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 and 6,6. These are the doublets. So how many doublets are there? Just you can make it, that means you can make a list here. So favorable event है ना, doublet निकालना है आपको, that means favorable E. तो favorable event क्या है? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 and 5,5. ये है फेवरेबल। तो n ऑफ E 1, 2, 3, 4, 5, 5, ठीक है। तो दैट मीन्स डॉबलेट का टोटल क्वांटिटी मिल गया, दैट मीन्स फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स 5 है, टोटल इवेंट 36 है। सो द प्रोबेबिलिटी, so the probability of a doublet, doublet मिलने का probability क्या है? n of E by n of S। तो n of E 5 है, n of S 36 है। तो this is the answer of getting a doublet। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, इवन नंबर बोथ डाइस, बोथ डाइस में इवन नंबर आना चाहिए। देखो दोनों ये तो पहले ही कैंसिल, 1 हर जगह 1 1 1 1 मिलेगा आपको, तो 1 इवन नंबर नहीं है। इसमें आप दोनों डाइस में इवन नंबर होना चाहिए, दैट मीन्स 2,2 है, 2,4, 2,6, 3 वाला भी नहीं आएगा, 3 इज ऑड नंबर। 4 बनाओ, 4,2, देखो दोनों डाइस में इवन नंबर है, 4 भी है 2 भी है, 4,4 दोनों डाइस में 4 4, 4,6 इवन नंबर्स। 6 में आओ, 6,2, 6,4, 6,6, ठीक है। टोटल आउटकम तो 36 ही है, उसको तो कोई चेंज नहीं करेगा। अब फेवरेबल इवेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो यहां पर जो है इवेंट नंबर ऑन बोथ द डाइस, इसमें फेवरेबल इवेंट क्या है? तो सॉल्यूशन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन E इक्वल्स टू, ऐसे लिखो, तो आओ लिखो 2,2 एक है, 2,4 दूसरा है, 2,6, फिर 4,2 है, 4,4 है एंड 4,6, ठीक है। मिटा देते हैं, फिर देख लेंगे क्या है। तो 4,6, फिर उसके बाद 6,2, 6,4, 6,6, दैट मीन्स these are all favorable events। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। so probability of getting even numbers on both dice, that means इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं आप, इवन नंबर्स दोनों डाइस के ऊपर इवन नंबर आ रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स ये तो 9 है, 9/36, 1/4, 1/4। सो दिस इट इज द सेकंड क्वेश्चन आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या था? तो थर्ड क्वेश्चन इज सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 7। दोनों डाइस में जो नंबर्स आया है, वो दोनों नंबर्स का सम जो है वो सम 7 होगा। सो देखो यहां पर ऐसा कुछ है क्या? है 1,6, 6 + 1 7। अब 2 में भी है 2,5, 5 + 2 7। 3 में भी है 3 + 4 7। इसमें भी है 4 3, 4 + 3 7। इसमें भी है 5 + 2 7। यहां पर भी है 6,1 7। दैट मीन्स आपका जो फेवरेबल इवेंट है वो कौन सा इवेंट है?
मतलब दोनों डाइस में वट एवर द नंबर्स appeared, okay, the sum of that numbers will be what? 7. That will be your favorable event. So here E equals to, for the third question, लिख लो, for the third question E equals to 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 and 6,1. तो यहां पर फेवरेबल इवेंट कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग the sum 7, getting the sum 7 अच्छा, equals to n of E by n of S. That means 6 by 36. Ultimate answer is 1 by 6. Ultimate answer is what? 1 by 6. 1 by 6. So that means these 3 questions answers were solved, and it is the basic level questions from the probability. Just I want to recall all the concepts and all the things regarding this probability concept, and that's why we solve this question. And it is this type of questions I think are not so important for the board. Not so, it means it is not important for the board, but this question is very important for making the clearing, that means for making clear concepts regarding this probability chapter. Okay, so कुछ concepts हम लोग यहाँ पर लिखेंगे probability related. ये हम लोग सेट्स चैप्टर में भी हम लोगों ने किया था, वेन डायग्राम. ठीक है, तो सेट्स से ही तो प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट आया है. ये सर दीज आर ऑल सेट्स, नो, दीज आर ऑल सेट्स, ऑर्डर पेयर सेट्स. जस्ट यू कैन सी सेकंड पैकेट इज देयर. All the sample space and the favorable events collections all are sets here. That means whatever the concepts will be used on this probability chapter, that will be correlated with the set chapter as well. Set chapter में हम लोग A union B, A intersection B है, ये सब हम लोगों ने निकाला था. प्रोबेबिलिटी में भी है, ठीक है. A union B, A intersection B, ये सब भी है. ठीक है, लिख रखो. कॉन्सेप्ट्स, सम कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग दो सम कॉन्सेप्ट्स. ये हम लोग जब डिस्कस करेंगे तब साथ साथ लिखिए. लिखो, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, if A and B are two events of some experiment, some concepts. If A and B are two events, that means दो outcome of an experiment, A और B दो इवेंट है of an experiment, then of an experiment, then first concept, P of A complement. अब याद रखना कि सपोज एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट है. ठीक है, एक इवेंट का नाम ए होगा, दूसरे इवेंट का नाम अगर नाम नहीं गिवन है तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा. ठीक है, जैसे सपोज ए एक इवेंट है, ठीक है, और ए के अलावा जो इवेंट होगा उसका नाम एडेश होगा. ठीक है, इसको ए कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है. दैट मीन्स ए इवेंट तो है, अब
ए को छोड़ के बाकी जो है उसका नाम आप दे सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। इट मींस ए को छोड़ के बाकी जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए का प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट जो है उसका प्रोबेबिलिटी आप लोग लिखेंगे पी ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए डैश। ठीक है, अब ए इवेंट और ए दैट मींस ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट दोनों मिला के पूरा एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्या? जैसे यहां पर एक कॉइन टॉस होगा, कॉइन टॉस होने के बाद दो इवेंट आएगा, एक हेड, हेड का नाम मैंने सपोज ए दे दिया, ए, हेड का नाम मैंने क्या दिया ए। अब हेड के अलावा जो भी आउटकम है दैट मींस टेल, उसको मैंने क्या नाम दे दिया ए डैश, दैट मींस ए कॉम्प्लीमेंट। सो ये जो हेड और टेल मिला के ही तो यहां पर पूरा सैंपल स्पेस बन रहा है, या फिर हेड और टेल के अलावा यहां पर और कुछ आउटकम्स हैं? देयर इज नो आउटकम एक्सेप्ट दिस हेड एंड टेल। ठीक है, सो हेड को अगर मैंने ए ले लिया ए इवेंट, तो टेल क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट होगा, दैट मींस ए को छोड़ के जो इवेंट है वो इवेंट होगा। ठीक है, अब दोनों इवेंट मिला के ही तो यहां पर ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पूरा एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 होगा, ये पूरा एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होगा। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, अगर यहां पर पूरा एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे 1 है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, जैसे सपोज एक तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे पास 6 चॉकलेट्स हैं, 6 चॉकलेट्स। ओके, अब 6 चॉकलेट में फेवरेबल क्या है, आपको 3 चॉकलेट ड्रॉ करना है, 3 चॉकलेट ड्रॉ करना है। तो यहां पर देखो टोटल आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं, 6 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट आपको ड्रॉ करना है। आप नहीं जानते कौन सा 3 चॉकलेट्स ड्रॉ करना है, बट हाँ ये श्योर है कि आपको यू हैव टू ड्रॉ 3 चॉकलेट्स एट अ टाइम। ठीक है, तो 3 चॉकलेट्स ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल इवेंट्स यहां पर कितना होगा 3 है, तो हाफ होगा। ठीक है, तो दैट मींस यहां पर फेवरेबल इवेंट 3 है, टोटल इवेंट्स तो 6 है, दैट मींस 3 चॉकलेट्स फेवरेबल है, आपको उठाना है, ड्रॉ करना है, और आपके पास टोटल चॉकलेट्स है 6, दैट मींस टोटल इवेंट। ठीक है, अब जो है अगर आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं और 6 के 6 आपको ड्रॉ करना है, दैट मींस फेवरेबल इवेंट भी 6 है, तो यहां पर 6 कट होकर कितना आएगा 1 आएगा प्रोबेबिलिटी। आपके पास 6 चॉकलेट है और 6 को 6 आपको ड्रॉ करना है, दैट मींस यहां पर फेवरेबल इवेंट टोटल इवेंट दोनों सेम हो गया। इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी विल बी 1, और प्रोबेबिलिटी जो है 1 में ही आके स्टॉप होगा, 1 से ज्यादा आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्यों, व्हाई? बिकॉज दिस न्यूमरेटर शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर तो फेवरेबल है, तो आपके पास टोटल जितना होगा उसके ऊपर ही तो फेवरेबल होगा। आपके पास है 6 चॉकलेट्स, आप 7 चॉकलेट्स कहां से ड्रॉ करेंगे, 7 चॉकलेट्स कहां से लाएंगे, नहीं ला पाएंगे। तो दैट मींस यहां पर हाईएस्ट न्यूमरेटर में आप 6 ही पुट कर सकते हैं, 6 से ज्यादा तो पुट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं हाईएस्ट यहां पर 6 पुट कर सकता हूं, तो आंसर भी हाईएस्ट 1 तक ही आ सकता है प्रोबेबिलिटी का, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, सो द अल्टीमेट थिंग इज दैट if one event is A, then another event will be A complement, that means except A whatever is left. Okay, so दोनों मिला के क्या होता है 1 होता है। ठीक है, जैसे देखो 3/6 that means ये 3 चॉकलेट है, उसका प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो बाकी तो 3 रह गए ना, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका भी 3/6 हाफ होगा। अब हाफ हाफ दोनों प्लस करो, आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहां पर जो है आप जैसे भी मर्जी करिए, ये दोनों आउटकम का प्लस जो है करने से आपको 1 ही मिलेगा। दैट मींस ये टोटल 3 चॉकलेट 6 चॉकलेट्स आ गए, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया, दैट मींस 1 टोटल प्रोबेबिलिटी। सो दैट मींस पी ऑफ ए डैश को हम लोग यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ
ए, देखो 1 माइनस पी ऑफ। सिमिलरली पी ऑफ सपोज बी डैश है आपके पास, so that means 1 minus p of b। थर्ड, जैसे आपको बोला गया p a and b, जैसे P A and B, that means यहां पर A इवेंट और B इवेंट दो अलग अलग इवेंट है। अब दोनों इवेंट्स को ही आपको चूज करना है, फेवरेबल है, दोनों इवेंट ही फेवरेबल है। सो A इवेंट भी फेवरेबल है, B इवेंट भी फेवरेबल है। दैट मींस A इवेंट लेके भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, B इवेंट को लेके भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसमें बीच में एंड लिखा हुआ है। ये जब एंड यूज होता है बीच में, तब कैसे रिप्रेजेंट होता है? सेट में आप लोगों ने शायद लिखा होगा, एंड को हम लोग इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। एज इट इज सेइंग P A और B, ठीक है, और या फिर एटलीस्ट ये सब वर्ड अगर लिखा रहे तो P ऑफ A यूनियन B लिखना है आपको, P ऑफ A यूनियन B, ठीक है, P ऑफ A यूनियन B। फिर फोर्थ पॉइंट है, जैसे P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो आपको याद है डी मॉर्गन्स लॉ फ्रॉम सेट, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? P ऑफ, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट है ना, तो उसको देखो तो 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये डी मॉर्गन्स, याद है सेट में डी मॉर्गन्स लॉ। इसको जो है ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम लोग 1 माइनस देके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, P A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहां पर ये जो है ना A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, उसको अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूं, देखो ये A है और ये B, A और अच्छा B कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? B को छोड़ के जो पार्ट है, दैट मींस ये पार्ट, B को छोड़ के जो पार्ट है दैट मींस ये पार्ट। A कौन सा है? A तो ये पूरा है कि नहीं? तो दैट मींस दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा होगा? यही तो होगा, है कि नहीं? ये होगा ना। तो इसको और किसी तरह यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैन आई रिप्रेजेंट दिस वेन डायग्राम इन अनदर प्रोसेस? यस वी कैन, एंड दैट इज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे, पूरा ए सेट, और ये जो है, ये जो गैप में दिखाई दे रही है, ये कौन सा है? A इंटरसेक्शन B है, सेट कॉन्सेप्ट, है कि नहीं? तो पूरा A सेट से अगर मैं A इंटरसेक्शन B, ये वाला पार्ट जो है उसको माइनस कर दूं, तो ये नहीं आता है क्या? तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देखो P ऑफ पूरा, देखो A सेट P ऑफ A माइनस यहां से कौन सा करना है? ये गैप P ऑफ A इंटरसेक्शन B। वेन डायग्राम देखिए, सेट कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। सिमिलरली P ऑफ, सिमिलरली जो है सेवन, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, इसको हम लोग P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं। कैसे? वेन डायग्राम देकर ड्रॉ कर लो। A कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन सा है? A के अलावा, दैट मींस A को छोड़ के जो पार्ट, ये पार्ट। अब B सेट कौन सा है? यही तो है ना, तो ये पूरा है। कॉमन कौन सा है? यही तो आ रहा है। इसको आप लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं?
दूसरे तरीके से देखो, बी सेट पी ऑफ बी, ठीक है, बी सेट, उससे माइनस करना है ये वाला पार्ट, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, तो लिख सकते हैं ना ऐसे, देखो तो पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स पूरा बी, पूरा ये बी, वहां से आपको ये वाला पार्ट, ये जो है ना बीच में जो कॉमन वाला पार्ट है उसको माइनस करना है, तो वही तो मिल रहा है ना आपको, तो दैट मीन्स दोनों एक ही बात है, ये चीज जो बात है ये सेम ही है, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सेट का ही कॉन्सेप्ट है, सेट से ही मिला है ये सब, मतलब कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन लिखो, ए पेयर ऑफ डाइस टॉस्ड, ए पेयर ऑफ डाइस टॉस्ड, if a event is to get a doublet, if a event is to get a doublet, a pair of dice is tossed, ये सब मतलब some concepts हैं that will be used in the different solutions, just आपको याद रखना है ये सब, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप सब लोग, जो है नोट कर लो, ईच एंड एवरीथिंग आपको नोट करना है, ओके। एक फेयर कॉपी बनाना है, फिर उसके बाद ये नोट्स करना है, सब चैप्टर जितना सारा क्वेश्चंस अब तक आज तक हुआ है सब आपको नोट करना है, एंड द होमवर्क शुड बी प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली, ओके। इन क्लास 11 and 12 actually this should not be advised that do the homework every day, okay. So just as the 12th candidate and the 12th class students, you should do your practice, you should do your homeworks for your conveniences, not for mine, okay. So just if you want to get that kind of result, if you want to achieve that kind of success, then you will have to complete your homeworks and the daily activities on due time, okay. So whenever just you will be very much punctual and disciplined on your studies, then only you can achieve that kind of goal and that kind of success in your life, okay. So in class 11 and 12 I will not tell you that do the homeworks and this everything, just practice it, no, okay. Just if you want to get the success, then you will do this thing. And now actually just if you I think if you are getting involved in different activities except studies, then what to do? I can't do anything here. So as a teacher, just I can tell you that please do the homeworks, do practice and be attentive in your studies, because after this 12th class no options will be there. These options should be set before facing the 12th exam, okay. उसके बाद ऑप्शंस और नहीं मिलेगा, ठीक है। बस ए पेयर ऑफ डाइस टॉस्ड, ए पेयर ऑफ डाइस टॉस्ड, ठीक है। इफ ए इवेंट is to get a doublet, is to get a doublet, is to get a doublet, and event B is to get an odd number, is to get an odd number on each die, then find P of A, P of B, P of A dash, P of B dash, P of
A intersection B dash, P of A complement intersection B, then P of A complement B complement, and then P of A union B and P of A intersection B. ओके अच्छा, इन सम कॉन्सेप्ट जो है जो हम लोगों ने लिखा है कुछ देर पहले, उसमें और एक कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा लिख लो। और एक कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा लिख लो। P A यूनियन B, P A यूनियन B, दैट मीन्स A यूनियन B कैसे निकालते हैं? P of A प्लस P of B माइनस P A इंटरसेक्शन B, ये आपको लिखना है। अब अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, ये A है, ये B है। अगर मैं ये पूरा A, ये पूरा B, अगर मैं एक साथ, ये देखो प्लस कर दिया ना मैंने, A सेट और B सेट को ऐड कर दिया, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, ये ऑलरेडी तो यहाँ पर आ गया ना, काउंटेड हो गया। तो वो यहां से जो है ये कॉमन वाला पार्ट, ये तो कॉमन वाला पार्ट है ना, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है। सो तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स में लिखा। ठीक है, ये जरूरत होगा, उसमें ऐड कर लो। तो ये सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं। और ये जो पेयर ऑफ डाइस, इफ यू टॉस दिस पेयर ऑफ डाइस, ये जो पेयर ऑफ डाइस टॉस किया है, तो हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर? 36 आउटकम्स। तो लिस्ट बनाओ 36 आउटकम का, वो 1 1 2 2 ये सब बनाओ है। हियर पेयर ऑफ डाइस tossed, that is sample space S equals to, वो बनाओ। क्या करेंगे? 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, ये लिख के रखो। क्या ये तो आपको लिखना तो पड़ेगा है। Without writing this thing, you will not get the idea, the numbers of favorable events. Just you have to remind all the things. Okay, so 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1, ऐसे करते करते 6,6 तक जाएगा, है कि नहीं? तो this is the sample space. So now A event यहां पर क्या है? A event is the collection of doublets. Doublets यहां पर क्या होगा? मैंने बोला था ये सब doublets हैं। ये 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, these are the doublets. So here A equals to here A equals to 1,1 2,2 3,3 4,4 4,5 5,5 and 6,6. So it is the favorable event, A event, doublet, okay? और B event क्या होगा? B event क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दोनों नंबर ऑड होना चाहिए। Event B is to get an odd number on each die. दोनों डाइस में ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है? दोनों डाइस में ऑड नंबर, दैट इज 1,1
1,3, 1,5, 2 वाला तो होगा नहीं, 3,3, 3,1 भी है, 3,1, 3,3 एंड 3,5, फिर 5,1, 5,3 एंड 5,5, सिर्फ ये सब ही आएगा, है नहीं, बी इवेंट ये। नाउ वन बाय वन यू नीड टू फाइंड ऑल द वैल्यूज। सो पहला क्वेश्चन क्या है, P ऑफ ए, P ऑफ ए मतलब क्या होगा, बस 1 2 3 4 5 6, 6/36, टोटल तो 36 है, और ए इवेंट फेवरेबल इवेंट कितना होगा, 6 होगा, 6/36, 1/6। P ऑफ बी 1 2 3 9, 9/36, that is 1/4। P ऑफ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, that means 1 minus P of A, 1 minus P of A means what, 1 minus 1/6, that means 5/6। P of B dash मतलब क्या होगा, 1 minus P of B, that means 1 minus 1/4, that means 3/4। P of B dash का आंसर होगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद कौन सा, P of A this, ठीक है ना, तो that means उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, B कॉम्प्लीमेंट और A, P of A माइनस P of A इंटरसेक्शन B। अच्छा, नाउ P of A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। अच्छा, यहां पर देखो तो A इंटरसेक्शन B निकाल के रखो तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B क्या होगा, दैट मीन्स A सेट और B सेट में कुछ कॉमन है कि नहीं, यहाँ पर देखो 1,1, 1,1 कॉमन है, 3,3, 3,3 कॉमन है, 5,5, 5,5 कॉमन है, दैट मीन्स कितना कॉमन है, 1 2 3 कॉमन है, दैट मीन्स n of A इंटरसेक्शन B कितना आएगा, 3 होगा। सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर मैं निकालूं, फॉर्मूला क्या होता है, n of A इंटरसेक्शन B बाई n of S, so that means 3/36, तो 1/12 है कि नहीं, क्योंकि A इंटरसेक्शन B जो है वो भी तो एक सेट है कि नहीं, वो भी तो एक सेट है, तो सेट का कार्डिनल नंबर n ऑफ A इंटरसेक्शन B 3 आ रहा है, तो दैट मींस 3 टोटल है यहाँ पर 36, 1/12। सिमिलरली P ऑफ A यूनियन B, उसको आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, यूनियन करके भी निकाल सकते हैं, या फिर और एक फॉर्मूला मैंने दिखाया था आपको अभी, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, वैल्यू बिठा दो, P ऑफ A का वैल्यू यहाँ पर 1/6 प्लस 1/4, इससे माइनस करना है कौन सा, 1/12, ठीक है। सो यहाँ पर ट्वेल्व 2 plus 3 minus 1/12, that means 5/12 minus 1/12, that is 4/12, that is 1/3 is the answer, 1/3 is the answer P of A union B का। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो A union B दोनों का निकालो यूनियन करके, है n of A union B आएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आपको कौन सा निकालना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A है 1/6 और A इंटरसेक्शन 1/12, तो करके देख लो यहाँ पर 12, 2 minus 1 that is 1/12, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, उसका निकाल के देखो कितना होगा, so P of A complement intersection B, that means P of B minus P of
ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो P ऑफ B दैट मीन्स क्या है 1/4 माइनस इंटरसेक्शन B का आंसर क्या है 1/2। तो निकाल लो 4 और 12 का, तो 12 भी आएगा। 3 minus 1 that means 2/12, it is 1/6 है कि नहीं। फिर P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोगों ने कैसे लिखा था डी मॉर्गन्स लॉ, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 minus P ऑफ A यूनियन B, that means 1 minus P ऑफ A यूनियन B। आंसर क्या आया था A यूनियन B का 1/3, that means 2/3। ये है P of A complement intersection B complement answer. So these are all very important questions for for clearing the concepts regarding this probability chapter. Okay, so these are all the 2 marks and the 3 marks. These type of questions are very important for 2 marks and 3 marks. Okay, and आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। In the next video we will discuss the conditional probability, and this every year at least one question used to come from this conditional probability. Okay, this conditional probability chapter, that means subchapter, is very important from the probability concept. Okay, conditional probability, what does it mean? Conditional probability एक एक्सपेरिमेंट होगा। अब एक एक्सपेरिमेंट के अंदर इवेंट्स जो भी हो, ए हो बी हो, इवेंट्स 2 है ए और बी। ये दोनों इवेंट्स जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड होगा, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होगा। दैट मीन्स यहां पर ए इवेंट और बी इवेंट दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ये है फर्स्ट कंडीशन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक एक्सपेरिमेंट होगा, उस एक्सपेरिमेंट में जितना भी इवेंट्स होगा वो इवेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ठीक है, तो अगर कॉमन है तो जब आप एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, दूसरे इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दिया जाएगा, गिवन रहेगा। वो आपको क्या होगा, मतलब क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि नहीं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट गिवन दैट दिस बी इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड। मतलब बी इवेंट ऑलरेडी ऑकर हो गया है, अब इसके ऊपर बेस करके ए इवेंट निकालेंगे। अब फॉर एग्जांपल जो है यहां पर देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसा है जिसमें जो भी इवेंट्स इन्वॉल्व रहेगा, ए बी 2 इवेंट ले लेते हैं कि 2 इवेंट इन्वॉल्व हैं ए और बी, और ए और बी दोनों के बीच जो है कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा। दैट मीन्स 2 इवेंट एकदम से अलग नहीं है, दे आर नॉट डिफरेंट। ओके, कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा दोनों इवेंट्स के बीच। तो अगर दोनों इवेंट्स के बीच कॉमन कुछ ना कुछ है, दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो बी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। दैट मीन्स बी ऑलरेडी हैपेंड। ऐसा बोला जाएगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी ऑलरेडी ऑकर्ड। दैट मीन्स बी इवेंट ऑलरेडी घट चुका है, दैट मीन्स उसका प्रोबेबिलिटी आपको पता है, आपको ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसके ऊपर बेस करके, बी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है, बी इवेंट जो है उसके ऊपर बेस करके आप ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूं। ठीक है, जैसे आपके पास 6 बॉल है, 6 बॉल्स, 6 बॉल्स हैं। अब 6 बॉल में सपोज एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। 6 बॉल्स में वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली। ओके,
जैसे सपोज ऐसे आपके पास 6 बॉल्स है, ठीक है, ये रेड बॉल है, ये ग्रीन, ये ब्लू बॉल है, ये भी रेड है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लू है, ठीक है। यहां पर जो है ए इवेंट, एक नाम देता हूं, ड्राइंग ए रेड बॉल, ड्राइंग ए रेड बॉल। बी इवेंट ए रेड बॉल एंड ए ब्लू बॉल। लिख लेते हैं। ए इवेंट क्या है, आपको एक रेड बॉल ड्रॉ करना है, एक ब्लू बॉल ड्रॉ करना है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। बी इवेंट जो है ड्राइंग ए रेड बॉल। बी इवेंट का नाम है ड्राइंग ए रेड बॉल, दैट मीन्स रेड बॉल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, आपको बोला जाएगा कि बी इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड, ऑलरेडी घट चुका है, दैट मीन्स आपने एक रेड बॉल जो है वो आपने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो जब आप, ये तो कंटेनर तो एक ही है, एक ही कंटेनर में ये बॉल्स रखा हुआ है, 6 बॉल्स रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने एक रेड बॉल जो है ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है और ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ओके, दिस वन रेड बॉल इज ऑलरेडी ड्रॉन। आपको ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, दैट मींस पी ऑफ ए निकालना है। गिवन क्या है, बी। लिखने का स्टाइल ऐसा है, इसका मतलब है बी इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड, बी इवेंट ऑलरेडी घट चुका है, ए इवेंट का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। लिखने का स्टाइल ऐसा है, दैट मींस कैसे निकालेंगे आप, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी, ऐसे निकालेंगे। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब मैंने बोला यहां पर ए इंटरसेक्शन बी क्यों होता है, क्योंकि देखो, जब आपने इस कंटेनर से ऑलरेडी एक रेड बॉल ड्रॉ कर लिया है, ऑलरेडी एक रेड बॉल आपने ड्रॉ कर लिया है, दैट मीन्स एक रेड बॉल कम हो जाएगा कंटेनर में सेकंड ड्रॉ के लिए, दैट मीन्स ए इवेंट, जब आप ए इवेंट करने के लिए जाएंगे दैट मीन्स सेकंड ड्रॉ होगा ना, वो सेकंड ड्रॉ करने के टाइम एक रेड बॉल कम हो जाएगा वहां से, है कि नहीं, ठीक तरह से देखो, एक रेड बॉल यहां से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेड बॉल कितना रहेगा, यहां पर रेड बॉल कितना रहेगा, 1 2 रहेगा। यही आपको यूज करना है हर एक क्वेश्चन में। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी elaborately and we will solve the different questions regarding this conditional probability, and I think after solving this conditional probability questions you will get the idea how this conditional probability questions can be solved. So इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, till then stay safe and stay healthy. Bye and jai हिंद।